Hello everyone, this is Vivek. Welcome to Indian Academy, India's largest online learning platform for the GATE and DSE. And now we are starting a new important conceptual question series on YouTube for the subject mechanics, and we will cover the 50 important questions, 50 important conceptual questions which contain a lot of concept of all chapters which is available in mechanics. So आज हम लोग सबसे पहला पार्ट कवर करेंगे उस 50 क्वेश्चंस की सीरीज का. सो स्टे कनेक्टेड विथ अस, स्टे कनेक्टेड विथ अन अकेडमी. एंड जो लोग इस बार फर्स्ट टाइम चैनल पे जुड़ रहे हैं उनके लिए दैट इज द लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट मी. Myself Vivek Kuswa. I have 7+ years of teaching experience, and I guided more than 8,000 students for the GATE and DSE examination, and I also cleared the GATE examination 4 times. I qualified the GATE examination 4 times and also selected in SSCI 2017. Right now I am plus educator in academy. और हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पार्ट 1 के बारे में. लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आपने अगर अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, यू हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. यू कैन गेट द मैक्सिमम advantage from this particular app that will provide you to live classes, structured courses, and live test and quizzes. These all things will be in a form of a structured course, and I am telling to you these everything is in a particular access which is the unlimited access. मतलब आप पूरे साल जब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहता है तब तक आप इजीली पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. राइट, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आएगा. आपको ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि मल्टीपल टाइम आप वीडियोस देख सकते हैं. देर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ अनलिमिटेड एक्सेस. अनलिमिटेड एक्सेस का यहाँ मीनिंग ये है कि कोई भी वीडियोस को कितनी बार भी देखो, कोई भी कंटेंट कितनी बार भी देखो, डजेंट मैटर. ठीक है ना. इट विल बी वैलिड फॉर द 1 year if you are purchasing the 1 year subscription. If you are purchasing 2 year subscription, it is valid for the 2 year, right? And after plus subscription you can get the uh, knowledge from the top educators which is available on Unacademy. And me and my colleagues and friends are there who are teaching for the GATE and DSE Academy. तो सभी लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो. एंड दीज सब्सक्रिप्शन फॉर द ऑल ब्रांचेस इज राइट. तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि प्लस सब्सक्रिप्शन गेट के लिए 25,000 का है फॉर 12 month. देर इज अ सर्टेन इंक्रीज ऑफ फीस. यू हैव टू चेक आउट द वेबसाइट. Little bit fees increases. I will change my slides in next video. And the 1 month subscription having a cost of 2083 rupees, right? And if you use the RTJ 10 special code for the 10% maximum discount, the cost will reduces to the 22,500 according to this 25,000, right? And for the 24 months, that is the extra 5,000 having the particular cost, and the subscription having the 1 year extra. राइट. सो एक्स्ट्रा 1 year के लिए आपको ओनली 5,000 रुपीज़ पे करना पड़ता है. और पर मंथ की EMI अभी जो इस हिसाब से है वो 1,250 रुपीज़ है. इससे आप समझ सकते हो कि अगर आप RTZ 10 कोड यूज करोगे, ध्यान देना मेरी बात को, RTZ 10 कोड विल प्रोवाइड यू मैक्सिमम 10% डिस्काउंट, and that will decreases that will help you in relaxation of the fees, which is converted into 30,000 to 7,000 as whenever you are using the RTZ 10 code, right? So that is the very important thing. And we will start the question series of the important questions of engineering mechanics. पार्ट 1 में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके चलेंगे. तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के. सभी के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन. द अनस्ट्रेस्ड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग AB is 3 meter. If the block is held in the equilibrium position shown, determine the mass of the block D. ठीक है. तो डी ब्लॉक का हमें मास बताना है कितना होगा. अगर पेपर में तुम्हें ये बोला गया है कि जो ये वाली स्ट्रिंग है, कौन सी स्ट्रिंग, AB स्ट्रिंग जो है वो अनस्ट्रेस्ड सिचुएशन पे, तो जो अनस्ट्रेस्ड सिचुएशन थी दैट वाज 3 मीटर, राइट. तो अगर अनस्ट्रेस्ड सिचुएशन 3 मीटर थी, तो अभी जब हम लोडिंग लगा रहे हैं उस सिचुएशन में तो दैट विल बी द 4 मीटर एंड 3 मीटर.
तो इस हिसाब से ये जो सिचुएशन अभी दिख रही है, दैट विल बी दी रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इट विल बी दी 5, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है, वेन एवर यू आर अप्लाई द लोड, ये फॉर ए बी की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो न्यू लेंथ होगी दैट विल बी दी 5 मीटर। चेंज इन लेंथ कितने का हुआ? 2 मीटर का चेंज इन लेंथ हुआ। तो हम यहाँ से बड़े इजीली पता कर सकते हैं कि ए बी में फोर्स कितना रहा होगा। ए बी का स्टिफनेस इंटू चेंज इन चेंज इन लेंथ हमें बताएगा कि स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन हुआ है, राइट। तो वी यूज दिस फॉर्मूला एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द एफ ए बी। और एफ ए बी यहाँ से बहुत इजीली निकल के पाएगा, के ए बी इंटू एल। और के ए बी तुम्हें पता है कि 30 इंटू एल की वैल्यू है, डेल्टा एल की वैल्यू है 2 मीटर, तो 60 न्यूटन विल बी द फोर्स। तो आई होप you all are getting my point what I am saying to you. इधर mg का फोर्स आएगा और यहाँ पर टेंशन हम मान लेते टी आर, राइट। एंड द एंगल इज गिवन टू यू विच इज द 45 डिग्री बिकॉज ऑफ द 3 एंड 3। देखो इधर सभी लोग, ये 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है, तो 45 एंगल हो जाएगा, यस और नो। एंड दिस एंगल यू कैन एज्यूम दिस एंगल इज थीटा, राइट। चलो हमें वैसे mg चाहिए, तो हमें बहुत ही सिंपल तरीका है, mg डिवाइडेड बाई साइन ऑफ, इसके सामने लामी थ्योरम लगा सकते हो तुम। तो mg डिवाइडेड बाई साइन 45 साइन 180 माइनस 55 प्लस थीटा, राइट, इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस 45। mg की वैल्यू यहाँ पर mg रहेगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 45 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। अभी यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, 6 इंटू साइन 45 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 1/√2। अभी थीटा देख लेते हैं क्या बता, थीटा को देखना बहुत इजी है। इफ यू आर टेकिंग द परपेंडिकुलर विच इज द 3 मीटर, देन साइन थीटा विल बी दी 3/5। इस हिसाब से थीटा कितना हो गया, 37 डिग्री, थीटा विल बी दी 37 डिग्री, राइट। तो यहाँ से चाहो तो मेरे ख्याल से इजीली कर सकते हो तुम, 37 इसको एज्यूम कर लेते, बहुत मेहनत नहीं मैं चाहता हूँ करो तुम लोग, है ना। तो साइन ए प्लस बी लगा दो, साइन ए कॉस बी, है ना, 1/√2 साइन ए हो गया, कॉस बी की वैल्यू 4/5 हो जाएगी, है ना, प्लस कॉस ए की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, एंड साइन बी की वैल्यू 3/5 हो जाएगी। इट विल बी बेनिफिशियल टू यू बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन। 6√2 कॉमन होकर 6 से 6 बचेगा, एंड 4 प्लस 3 7/5 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 5, 8.4 kg आ जाएगा मान। So that will be the answer of this question. I hope you all are getting my point, what I am saying to all of you. Yes or no? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है कि डिटरमाइन द
अनस्ट्रेच्ड लेंथ इन डीबी मेंबर, डीबी स्प्रिंग में अनस्ट्रेच्ड लेंथ बताना है कि जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ समझते हो ना, इनिशियल लेंथ, टू होल्ड द कैरेट 40 kg इन द पोजीशन सोन, और स्टिफनेस दिया गया है। तो देखो एक चीज समझो सभी लोग, फाइनल लेंथ अभी जो यहाँ है √3² + 5 4 है, जब 2 स्क्वायर है राइट, 9 + 4 √13 हो गई। अभी ये इनिशियल सिचुएशन दी गई है ना। यू डोंट नो अबाउट द एक्स, सो बट देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द कॉन्सेप्ट आई एम सेलिंग टू यू। इधर की तरफ टेंशन आएगा, इधर की तरफ के एक्स फोर्स आएगा, और नीचे आने वाला है डब्ल्यू लोड। ठीक है, अभी के एक्स की वैल्यू नहीं पता आपको कितनी होगी। एक्स होगा फाइनल लेंथ √13, और इनिशियल कुछ रहा, मैंने मान लिया L1 फॉर एग्जाम्पल, L1 इज द इनिशियल लेंथ है ना, या ऐसे समझ लो ये डेल्टा एक्स है, और x1 पहली कोई लेंथ रही, फाइनल √13। अभी एंगल देखो सभी लोग कितना होगा, 2 की वजह से 45 होगा, और इसको थीटा मान लो। अभी लास्ट टाइम जैसा क्वेश्चन करा है एज इट इज ए क्वेश्चन है, के √13 माइनस x1 डिवाइडेड बाई साइन 90 + 45 इज इक्वल टू W, है ना, डिवाइडेड बाई साइन 45 + 3। बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ से एक चीज ध्यान देनी है, के √13 माइनस x1 इज इक्वल टू W की वैल्यू देखो कितनी है, W दिया 40 kg, 40 kg का है रेट, और K है 180 न्यूटन मीटर, इट इज 180 40 मतलब 400 न्यूटन, और साइन 90 साइन 45 + थीटा को ऐसे ही रहने दो अभी। बट यहाँ से देख सकते हो x1 की वैल्यू निकालना कोई टिपिकल टास्क नहीं है, बहुत इजीली एक लाइन में सॉल्व किया जा सकता है अगर तुम चाहो तो क्वेश्चन को। √13 माइनस x1 इज इक्वल टू 400 इंटू 1/√2 है ना, डिवाइडेड बाई 180 इंटू साइन 55 + थीटा, right? It will be the better option to calculate the x1. x1 is nothing but √13 minus 400 divided by √2 into 180 into sine 45 plus theta। अभी बहुत सिंपल है, साइन थीटा का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दिस एंगल इज थीटा, दिस दैट वाज द थीटा, √13 डिवाइडेड बाई 2, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 2 डिवाइडेड बाई, सॉरी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 2 डिवाइडेड बाई √13 एंड कॉस थीटा विल बी द 3 डिवाइडेड बाई √13। टेंशन कर लेना सभी लोग, इसको फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से, मैं लिख दे रहा हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई √13, कॉस थीटा बराबर 3 डिवाइडेड बाई √13। पुट दीज वैल्यूज एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ द x1 वेरी इजीली, राइट। साइन 45 + थीटा के हिसाब से अगर तुम देखोगे तो साइन ए प्लस बी बनेगा, वही चीज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आना इतना ही है, मेहनत से भी करो चाहे जैसे करो, है ना, अरे मेहनत तो तब भी करनी पड़ेगी ना। अभी देखो देखो √2 से सारे √2 शहीद हो गए, √13 सबसे कॉमन आएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 5, 5 से 400 जाएगा, कितना आएगा
कुछ चीज़ें गलती हुई हैं जहाँ पर हमें ध्यान देना था शायद, होपफुली। देख लेते हैं एक बार क्या गलत हो रहा है। न्यूटन पर मीटर, मीटर मीटर चला गया। 405 40 kg की वजह से से कुछ गलत तो दिख नहीं रहा है मुझको। 180 अच्छा है, सही घटनी चाहिए। इस हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं। 400 डिवाइडेड बाई √2। ओके, 180 लेफ्ट हो गया यहाँ से, 180 छूट गया है। तभी मैं सोचा क्यों गलत हो रहा है ना। बहुत अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। 180 नीचे रहेगा। बहुत ही सिंपल हो गया अब तो। 400 डिवाइडेड बाई 900 हो जाएगा ना, 18×5 = 90 है ना। 90 और 0 900, सो 0.44 -1 आ जाएगा इतना, इंटू √13 कर देते हैं। 2 आंसर आ जाएगा। x1 इज इक्वल टू 2। तो इनिशियल लेंथ वॉज 2 मीटर। Initial length, unstretched length will be there 2 meter, right? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि ब्लॉक डी एंड डी हैव मास 4 and 6 kg, F was the 80 Newton, determine the sag S and distance x for the equilibrium। S और x वैल्यू बतानी है अगर तुम्हें फोर्स गिवन है। 4 and 6 kg will be the masses। देखो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से अगर 4 kg होगा, डी है 4, 6 ये है, ये 4 kg है अगर, और ये 6 kg है, इसका मतलब ये होगा कि इधर 60 लगेगा और इधर 40 लगेगा, राइट। यहाँ पर भी 40 आएगा, यहाँ पर भी 60 आएगा, यहाँ पर कितना है, ये। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया कि नहीं। इधर 60, इधर 40, नीचे 80, राइट। अभी अज्यूम कर लो ये एंगल थीटा है और ये एंगल फाई है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं। यस और नो। अभी तीनों पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो लामी लगा सकते हैं। Our objective to find out the theta and phi, right? So there should be a two equation and you can solve these two equations. थीटा एंड फाई एक्चुअली हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए एस और एक्स ज़रूरी है। बट वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द थीटा, वेन एवर यू टॉकिंग अबाउट द थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हम देख लेते हैं। साइन थीटा विल बी दी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एस अपॉन √/s² + x²। cos theta will be this, x upon √, और इसी तरह साइन फाई कॉस फाई की भी वैल्यू, मगर साइन फाई कॉस फाई हमें पता होगा बिकॉज दैट विल बी दी 6 - x, राइट। एंड 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 दैट विल बी दी एस एंड एस। तो थोड़ी मेहनत है, थोड़ी मेहनत लगेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। करते 80 के लिए अगर लिखोगे 80 डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस थीटा, 60 डिवाइडेड बाई साइन 90 + 5। बहुत इजी है, चाहे तो हम इजीली यहाँ से 2 का रिलेशन बना लें, इसी 2 का एक रिलेशन।
साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 प्लस 180 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। यहाँ से तुम सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी करके। थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, आई होप सबको समझ पे आ रहा होगा कि हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रिप्लेस करनी है इन टर्म्स ऑफ एस एंड एक्स, है ना, और कॉस थीटा की वैल्यू भी रिप्लेस करनी है इन टर्म्स ऑफ एस एंड एक्स। तो हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी एस और एक्स में, और हमें दो इक्वेशन से दो अननोन निकालने होंगे, यही हमें काम करना है ना। तो साइन थीटा प्लस फाई के बारे में अगर मैं बात करूँ तो साइन ए कॉस भी लगा सकते हो, साइन थीटा कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई, राइट। ये सारी चीजें इफ यू वांट टू डिवाइड द साइन थीटा इट विल आल्सो हेल्प यू, it will also help you more. For example, that will convert it into the tan theta cos phi. According to me, as I understand, like it will be the tan theta. Sorry, cos theta will cancel out. तो 2 इज इक्वल टू tan theta, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह cos phi जब हम निकालेंगे तो बेस होगा हमारा 6 माइनस एक्स का, और हाइपोटेनियस होगी रूट में, वही चीज बड़ी बहुत मेहनत वाली, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स प्लस साइन फाई की वैल्यू जो आएगी इसी तरह से बहुत बड़ी आएगी। चाहो तो वैल्यूज पुट ही ना करो, है ना, थीटा और फाई सीधे निकालो, दो एंगल ही तो ढूंढने हैं, निकाल सकते हैं चाहे तो। एक बार ये वाला रिलेशन यूज करते हैं, क्या होगा बताओ, 40 cos फाई इक्वल्स टू 60 साइन 60 cos थीटा। यहाँ से पूरा थीटा का वैल्यू ही नहीं निकाल लेंगे, कैसे देखो, cos फाई की वैल्यू यहाँ डाल दो, tan थीटा इंटू cos फाई हो जाएगा 3/2 cos थीटा, तो साइन फाई क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर फाई को तुम लिख सकते हो 9/4 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो मैं इसको और थोड़ा सा सिंपल बना रहा हूँ, साइन बाई कॉस, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, 3/2 साइन थीटा आ जाएगा प्लस 4 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, and that too converted into 4। इस सबको क्या करना है, इट इज अ होमवर्क टू यू, you have to find the theta from this equation, you can get easily theta, right, and जैसे ही थीटा निकलेगा यहाँ पर पुट कर दोगे तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, फाई, और फाई और थीटा आते ही तुम एस और एक्स का वैल्यूज क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, इज वेरी सिंपल, okay, so it's a homework, you have to done it, you have to solve it, if you are facing any problem you can WhatsApp me and you can also ask me। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है स्क्रीन, देखो तो सब लोग, A man has weight W stands at the center of the plank, plank के सेंटर पे weight W एक्ट कर रहा है, if planks A and B are smooth determine the tension in the cord in terms of W and B। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये है हमारा प्लैंक, इस पर रिएक्शन आएगी आर ए, इस पॉइंट पर रिएक्शन आएगी, that is the our plane, it will be perpendicular to this,
that will be the RB. The tension in the parallel to the plane, which is the T. That angle is phi. That angle is theta. But one more thing is that from the vertical, I am telling to you, दो लाइन के बीच बना एंगल उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच बने एंगल के बराबर होता है. तो अभी हम थीटा के बारे में बात करेंगे, फाई के बारे में भी बात करेंगे ना. देखते हैं. अगर हम यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, दैट विल बी द थीटा. और फाई की अगर बात की जाए, तो यहाँ फाई की जरूरत नहीं, जैसे ही पड़ेगी मैं बता दूंगा. ठीक है, चलो. अभी हमें क्या करना है, हमें W का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा चाहिए, फाई नहीं चाहिए सर में. तो देखो यहाँ पर W की वैल्यू, W कहाँ होगा, W विल बी एट सेंटर, दैट इज द लेंथ L. W act at L/2 and L/2. Man is standing at where? Man of it, सेंटर ऑफ द प्लेन. सेंटर पे है तो बिल्कुल अच्छी बात है. अभी देखो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, मूवमेंट को बैलेंस करना चाहिए B पे. अगर हम B पॉइंट पे मूवमेंट को बैलेंस कर लें, केस whenever we are balancing whole movement at point B, क्या होगा, B पे जैसे ये मूवमेंट बैलेंस करोगे तो होगा ये जो RA फोर्स तुम ऊपर की तरफ देख रहे हो, RA RA L का अगर तुम देखो तो cos फाई जो कंपोनेंट है वो B के अबाउट मूवमेंट देगा. तो RA इंटू L cos phi. T is the parallel to this point. It will passes through the B. RB is passes through the B. Will not give any movement. And जो B वाला देगा, W जो देगा, W की बात समझते हैं. W कैसे मूवमेंट देगा, W की बात अगर करी जाए तो W के पास भी इसी तरह ये डिस्टेंस होगी, इस L/2 cos phi. W यहाँ से RA का बिल्कुल साफ सीधा वैल्यू आ गया, W/2. हमें टेंशन चाहिए था एक्चुअली, मेहनत हम T के लिए करें. क्या करना चाहिए बताओ T के लिए, T के लिए हॉरिजेंटली फोर्स बैलेंस करते तो RB और T में इक्वेशन बन जाती ना. और अगर वर्टिकल फोर्स बैलेंस करोगे सभी इक्वेशंस आए. तो ऐसा करोगे सभी लोग वर्टिकल के अबाउट बैलेंस करते हो और हॉरिजेंटल हो जाए. ठीक है, या अगर तुम वाकई में आंसर निकालना चाहते हो मेरे हिसाब से, RB को पिक्चर में मत लाओ, T को सीधे ले आओ. RB को पिक्चर में मत लाओ, T के हिसाब से ले आओ. मतलब क्या है, मतलब ये है, चलो कोई बात नहीं, मेहनत कर लेते हैं. सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई करके बड़ी इक्वेशंस बना लेते. सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करोगे तो देखो क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो में आर ए और डब्ल्यू वर्टिकल हो जाएंगे तो कंपोनेंट नहीं देंगे, टी कंपोनेंट देगा अलोंग दिस. तुम्हें पता होना चाहिए दैट एंगल विल बी दी, दिस इज द प्लेन, राइट.
प्लेन है तो ये थीटा ही होगा। इज इट क्लियर टू यू? जो रस्सी है वो प्लेन के अलोंग है। तो हॉरिजेंटली फोर्स बैलेंस करोगे तो टी कॉस थीटा आएगा लेफ्ट साइड। एंड आर बी का जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी आर बी साइन थीटा, राइट? तो आर बी साइन थीटा माइनस में प्लस टी कॉस थीटा प्लस में इज इक्वल टू जीरो। और कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं। टी की वैल्यू वैसे देखी जाए तो आ गई है आर बी डिवाइडेड आर बी टेन थीटा। सिग्मा एफ वाई जीरो करोगे आर ए प्लस टी साइन थीटा प्लस आर बी साइन थीटा सॉरी आर बी कॉस थीटा। ये सभी वर्टिकल कंपोनेंट होंगे और ये सभी डब्ल्यू के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अब सीधे वैल्यू ही आ गई डब्ल्यू टेंशन की। डब्ल्यू माइनस आर बी की वैल्यू टी के टर्म्स में निकाल लो। आर बी की वैल्यू टी के टर्म्स में रख दो सभी की वैल्यूज। आर ए की वैल्यू भी डब्ल्यू बाई टू आई है। डब्ल्यू बाई टू तो कैंसिल हो जाएंगे। डब्ल्यू बाई टू साइन थीटा प्लस बाई टेन थीटा। और डब्ल्यू बाई टू इधर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो इजीली आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डब्ल्यू साइन थीटा डिवाइडेड टी बराबर कितना आ गया डब्ल्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई इट विल बी टेंशन इन द स्ट्रिंग, राइट? दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सबको समझ में आया। तीन इक्वेशंस यूज करनी थी, तीन अननोन थे और अच्छे से क्वेश्चन हमने, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया कि लीनियर टॉरिजनल स्प्रिंग है, इस पर कपल मोमेंट m लगाया गया है 20 थीटा का। इफ द स्प्रिंग इज अटैच्ड टू द पर्टिकुलर रॉड, है ना, एक कोई पर्टिकुलर हमारे पास में एक रॉड है 10 kg का, उसको क्या किया गया है, इसको हिंज कर दिया गया, पिन सपोर्टेड है, वहां पर स्प्रिंग लगी हुई। सिंपल सी बात है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा तो, बट चूंकि रॉड तो सिंपली ऐसे करके टर्न करके घूम जाएगी ना, बट स्प्रिंग यहाँ पर क्या करेगा, इसको रोक के रखेगा। सर्टेन एंगल बाद ये चीज़ रुक जाएगी, बिकॉज इस पर आने वाली है दो रिएक्शन, एक आर ए वी, एक आएगा आर ए एच हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एम ए विल बी दी मूवमेंट। और इस सिचुएशन पर इसका सेल्फ वेट 10 × g लग रहा होगा। I hope you all are getting my point what I am saying to you. Yeah, but always the load will be perpendicular to this point पे लगेगा vertically downward into g। अगर हम बात करें कि मूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना भी मूवमेंट आएगा इस ए पॉइंट के अबाउट, सिग्मा एम ए अगर हम जीरो कर दें तो एम ए मूवमेंट को जीरो करने पे तो पता चलेगा कि भाई आर एच आर ए भी कोई मूवमेंट देंगे नहीं, और एम ए जो मूवमेंट देगा वो कितना देगा, -20 थी। इसके बाद तो कोई दूसरा मूवमेंट है। दूसरा 10g जो फोर्स होगा वर्टिकल वाला, ध्यान देना, इस पॉइंट के अबाउट जब मूवमेंट लोगे तो दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? दैट विल बी द 0.5 डिवाइडेड बाई 2, दैट एंगल इज थीटा। So what will be the perpendicular distance? 10g। इसको तुम निकाल सकते हो बहुत इजीली,
बेस है तो 0.5/2 कॉस थीटा हो जाएगा, 0.5/2 प्लस कॉस थीटा, राइट। उसको तुम सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। कॉस थीटा को तुम चाहो तो बहुत ही मुझे लगता नहीं है और किसी चीज़। फोर्स हो गया इंटू डिस्टेंस हो गई, एंड डिस्टेंस में है ही है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। एन जी 2 मतलब 100 हो जाएगा तो ये 50 बचेगा, 0.5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 20 थी, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 25 आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल एंड इसको तुम सॉल्व करके यहाँ से क्या कर सकते हो, थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। और क्योंकि ये एक थोड़ा सा छोटा इक्वेशन बन रहा है, थोड़ा सा लिटिल बिट मुझे लग रहा है कहीं पर ये मिसिंग है छोटा सा, -20 थी। ओके, दिस प्रॉब्लम वी विल डील इन नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस दिस पार्ट 1 एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द पार्ट 2 ऑफ दिस प्रॉब्लम। और पार्ट 2 में मैं फ्रिक्शन भी कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टे कनेक्टेड विद अन अकेडमी, स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।